Hello and welcome to Learn with Hema's class. My dear students, today I shall be taking up a lesson of science from grade 8, lesson number 10, cell and cell organelles. Many students have been asking me to explain this lesson as they understand the way I explain to them. So that's the reason I have taken up this chapter. So if you all would give a good response to this chapter, I'll take up the other chapters also of science. But the question answers video, I have already made a question answers video of this chapter and I have already posted it. So here's the explanation. I shall start now. The entire textbook line by line I'll explain you of this chapter. Before going ahead, one small thing which I always ask you, that is, if you are new to my channel, please do subscribe to my channel and share my videos with your friend. And if you find my videos useful, please do not forget to hit the like button. So let's start with our chapter. The very first question is, can you recall how many types of cells are found in living organisms? In living organisms, we have done before also, there are two types of cells which are found, eukaryotes and prokaryotes. Whereas eukaryotes are those cells which have a nucleus in them and prokaryotes are cells which do not have a nucleus in them. So these are the two types of cells which are normally found in living organisms. Second question is, which instruments had you used to observe cells? Which instruments have been used? We always use microscope, or there in microscope also there are different, such as compound microscope, simple microscope, electron microscope. So it depends what kind of a study we have to do on the cells. So we use microscopes. So last year we studied that cell is the structural and functional unit of living organisms. This is the last year what we have done in science chapters, and according to the functions, how cells of different sizes and structures are found in different organs. So this we have done last year. Let's come to the structure of the cell if this year we talk about. So these are the two structures of the cell given over here. The first one is the plant cell over here and the second one is the animal cell over here. You can see the various things inside the cell, and these all are nothing but these all are organelles of a cell. So a cell basically contains all these things inside it, and they have, each of every organelle have a certain function to perform, and they are very important from the point of view of living organisms if we talk about, because a living organism is entirely made up of cells. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बनाया हुआ है वो पूरे छोटे 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 जो सेल्स होते हैं उन सेल्स से पूरा हमारा बॉडी जो है, स्किन जो है, पूरा उसी से बना हुआ है. तो सेल्स आर द टाइनिएस्ट पार्ट, यू कैन से, ऑफ अ बॉडी. So this is the table. Let's go ahead with the components of a cell. Each component I shall explain you in a very simple and easy language. So the very first component is cell wall, which is very important. बहुत important है cell wall. जैसे हमारे बॉडी के ऊपर हमारे मांस को जो हमारा स्किन ढकता है, तो स्किन एक वॉल का काम करता है जो बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे अंदर के मांस को बचाता है. बिल्कुल उसी तरह से सेल वॉल जो है, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनेलीज है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, ऑर्गन्स है सेल के, उन सब को बचाता है बाहर के एनवायरनमेंट से. तो सेल वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल. इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ एल्गे, फंगी एंड प्लांट्स. यानी कि सेल वॉल जो है नॉर्मली हमें प्लांट सेल में ही मिलते हैं. एनिमल सेल में सेल वॉल नॉर्मली एब्सेंट होते हैं. एनिमल सेल्स लैक सेल वॉल, दैट मीन्स एनिमल सेल्स के पास ये सेल नहीं होता है. सेल वॉल इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन. ये कोटिंग है बाहर की तरफ जो सेल को कवर करता है, और ये इलास्टिक भी है ताकि सेल जब बड़ा छोटा होता है तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. साथ ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो जल्दी से बाहर के किसी भी चीज़ों को अंदर आने नहीं देता है, ना अंदर की चीज़ों को बाहर जाने देता है. देयर इज नो लीकेज काइंड ऑफ थिंग from the cell. It is mainly composed of carbohydrates like cellulose and pectin. तो कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है. कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि सेल्यूलोज और पेक्टिन, इनका बना हुआ है, इसीलिए वो मजबूत है. आफ्टरवर्ड्स पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड. आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड यानी अगर सेल को लग रहा है कि उनके बॉडी में सेल उनको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये पॉलीमर्स वो जैसे कि लिग्निन, सुबेरिन या क्यूटिन, वो लोग अपने सेल वॉल में अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐड हो जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स ये ऐड इसलिए होते हैं, पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं. वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है पॉलीमर्स किसी चीज़ की. जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी एक काइंड का पॉलीमर ही है.
स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है एटम्स की आपस में। Functions of cell wall are to support and to protect the cell by preventing entry of excess water in the cell. Cell wall का काम क्या है कि सेल के अंदर एक्सेस वाटर ना एंटर हो जाए बाहर से, तो वो प्रिवेंट करता है एक्सेस वाटर को अंदर सेल में एंटर होने से। तो सेल वॉल का मेन फंक्शन यही है। तो अब हमारा सेकेंड कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन अगर हम बोलते हैं तो ये जो एक है, ये बाहर जो वॉल होता है उसके अंदर एक छोटा सा और एक बॉर्डर होता है। सेल वॉल के अंदर एक छोटा सा बॉर्डर होता है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज थिन, ये एक बहुत ही पतला सा होता है, फ्रेगाइल, थोड़ा सा वीक होता है, नाजुक सा, एंड इलास्टिक यानी स्ट्रेचेबल, सेल के हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक टाइप का कवरिंग है जो कि थिन, फ्रेगाइल या इलास्टिक है, एंड दैट सेपरेट्स द सेल कंपोनेंट्स फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, जो सेल कंपोनेंट्स को, सेल के अंदर के चीजों को बाहर के चीजों से सेपरेट करता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, क्या स्ट्रक्चर है उसका, कैसे बना हुआ है? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड इन 2 layers ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन as it allows some substances to enter the cell while prevents other substances. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स है, एक्चुअली दीज आर प्रोटीन्स, प्रोटीन से बने हुए हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, एंड दे आर एम्बेडेड इन 2 layers, यानी कि 2 लेयर में ये जुड़े हुए हैं आपस में। और दो जो लेयर्स है वो किसके लेयर है? फॉस्फोलिपिड्स के। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर घर का एग्जांपल मैं देती हूँ, तो जब आप चाय बनाते हैं तो चाय में दूध, चाय, शक्कर, चाय पत्ती सब डालते हैं, और चाय बनने के बाद आप उसे छान लेते हो। क्यों छान लेते हो? ताकि अदरक है या चाय पत्ती जैसी चीजें हैं, जो सॉलिड चीजें हैं, वो अलग हो जाती है। बाकी जो चाय पत्ती का जो जूस है या दूध है, पानी है, शक्कर है, ये सब घुला हुआ रहता है, तो उसका टेस्ट हमको टी में आ जाता है, लिक्विड टी में, और जो सॉलिड चीजें हैं हम उसको अलग कर देते हैं। तो ये छलनी क्या काम कर रही है? ये जो चीजें हमको चाहिए, यूजफुल है, वो चीजों को अंदर ले लेती है और बाकी चीजों को बाहर निकाल देती है, कचरा। तो बिल्कुल उसी तरीके से है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। यानी ऐसा नहीं है कि हर चीज को अपने अंदर आने देती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर। इट अलाउज ओनली सम सब्सटेंसेस टू एंटर, सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को एंटर होने देती है, जैसे वाटर, सॉल्ट, ऑक्सीजन, ऐसी चीजों को एंटर होने देती है, और कुछ चीजें जो नहीं जरूरत होती है सेल को, उनको बाहर जाने देती है, बस उतना ही। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी चीज को अंदर आने जाने नहीं देती है। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो हम दरवाजे पे अगर कोई जान पहचान वाला खड़ा है तो हम उसे अंदर आने देते हैं, जान पहचान वाला नहीं है तो उसे बाहर से ही रवाना कर देते हैं। तो सेल वॉल भी बिल्कुल उसी तरीके से करता है, काम की चीजों को अंदर लेता है, बिना काम की चीजों को बिल्कुल नहीं लेता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि एंट्री टोटली बंद है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ ही सिलेक्ट करके ही और उसको परमिशन देते हैं सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने की। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी यूजफुल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड ऑक्सीजन एंटर द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट्स द सेल। और इसी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के वजह से ही कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर, सॉल्ट और ऑक्सीजन के, वो सेल के अंदर आ सकते हैं, और जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो वो सेल के बाहर जा सकता है। If any changes occur outside the cell, the cellular environment does not change due to plasma membrane. This condition is called homeostasis. अब देखो कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे अभी गर्मी का मौसम होता है बाहर समर सीजन में, तो हमें घर में भी गर्मी लगती है, और ठंडी का सीजन होता है तो भले ही हम कितने ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें, हमें अंदर ठंडक महसूस होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर का एनवायरनमेंट हम अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से सेल जो है वो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर बिल्कुल महसूस नहीं होने देती है। बाहर कम है, ज्यादा है, क्या है, कुछ भी होने दो, इट डजंट अलाउज द इनर एनवायरनमेंट अफेक्ट फ्रॉम इट। सो इफ एनी चेंजेस ऑकर आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर कुछ हो रहा है तो वो सिर्फ सेल के बाहर हो रहा है, उससे अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो सेल्यूलर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस नहीं होते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, इस चीज को, इस कंडीशन को हम कहते हैं homeostasis. Homeostasis means there is no change inside the cell even if there are changes taking place outside the cell. Activities that consume cellular energy. Let us learn about this. कौन सी एक्टिविटीज है जो सेल्यूलर एनर्जी कंज्यूम करते हैं? अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज है, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोसाइटोसिस? एंडोसाइटोसिस मत जब
कोई सेल जो है कुछ फूड पार्टिकल्स इनटेक करता है, एनगल्फ करता है, तो उस वक्त उसे एनर्जी लगती है। तो एक उस वक्त उसकी एनर्जी यूज्ड अप होती है, और दूसरी है एक्सोसाइटोसिस, यानी कि जब उसके बॉडी से कुछ वेस्ट वो निकालता है तब उसको एनर्जी यूज होती है। तो ये दो पार्ट है। एंडो मीन्स टू टेक इनसाइड, एंड एक्सो मीन्स टू रिमूव फ्रॉम वन सेल्फ। तो दीज टू थिंग्स, ये जो दो एक्टिविटीज है, इसमें सेल्यूलर एनर्जी हमारी यूज्ड अप होती है। अब ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। सेल जब वो एक्टिविटी करते हैं तो उनमें एनर्जी कंज्यूम नहीं होती है। पहला है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मतलब जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है, ये जो है पानी में घुल जाते हैं डिफ्यूज स्टेट में, मतलब डिफ्यूज स्टेट में पानी में घुल जाते हैं और उस हिसाब से वो अंदर बाहर हो जाते हैं सेल के, और इसके अंदर कोई एनर्जी यूज अप नहीं होती है सेल की। दूसरा है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें वाटर ट्रेवल करता है, जहां पर ज्यादा पानी है वो पार्ट से कम पार्ट वाले एरिया में ट्रेवल करता है। तो ये कैसे प्रोसेस होता है? ये 3 टाइप से प्रोसेस होता है। इसके पहले मैं आपको आगे ये बढ़ाऊं, आप इसका डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑस्मोसिस, द ट्रेवलिंग ऑफ वाटर, मतलब जो पानी ट्रेवल करता है फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर, उस पार्ट से जहां ज्यादा पानी है, टू अ पार्ट विथ लेस वाटर, उस पार्ट तक जहां कम पानी है, थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज अवर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने ऊपर अभी पढ़ा था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये यहां तक पूरा इसका डेफिनेशन है, और इस डेफिनेशन के साथ में भी आपको ये लिखना जरूरी है, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस विथ 3 पॉसिबिलिटीज। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, 3 तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है, किसी भी एक तरीके से पॉसिबल हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। और इसके अंदर भी, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी कोई सेल्यूलर एनर्जी यूज्ड अप नहीं होती है। तो अब इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज ऐसा है कि प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। अभी आप प्लांट सेल में देखेंगे, जब ये जो बाहर की तरफ एरो मार्क दिखा रहे हैं, यानी कि अंदर से वाटर कंटेंट जो है बाहर की तरफ गया है, यानी अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा था और बाहर कम है, इसके लिए ये अंदर से बाहर गया है। तो इस टाइप को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में ये रखे गए हैं। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को या चीजों को किसी सॉल्यूशन में रखते हैं, तब ये सब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इसी वजह से इनको हम कुछ बोलते हैं हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक। अगेन दूसरा जो है ऑस्मोसिस प्लांट का जो है, इसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ में वाटर लेवल जो है, वाटर का प्रेशर जो है सेम रहता है, मीडियम रहता है। इसीलिए ना तो पानी अंदर जाता है ना बाहर जाता है, और या तो फिर अंदर जाता भी है तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आ जाएगा। और दूसरे में ये है तीसरा जो है, आप बाहर से अंदर की तरफ एरो मार्क देख रहे हैं, यानी कि पानी जो है बाहर से अंदर, बाहर उसका प्रेशर ज्यादा रहता है और फिर वो बाहर से अंदर जाता है, जिसके कारण जो हमारा चीज रहती है, जो हमारी चीज रखी रहती है सॉल्यूशन के अंदर, वो फूल जाती है। देखो यहाँ पे आप वैक्यूल एकदम कम छोटा सा दिख रहा है हमें, एकदम श्रिंक हुआ, क्योंकि यहाँ से जो है पानी बाहर जा रहा है तो ये श्रिंक हो गया अंदर। यहाँ पे नॉर्मल स्टेट है उसका, क्योंकि यहाँ पर इक्वल स्टेट है अंदर और बाहर, और यहाँ ये फूल गया है पूरी तरीके से, क्योंकि बाहर से पानी अंदर आ रहा है, ये फूल गया है। सेम वे आप यहाँ देख सकते हो, ये सिकुड़ गए हैं, ये नॉर्मल कंडीशन में है और ये फूल गए हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, यानी कि इसमें आउटसाइड और इनसाइड मीडियम फोर्स ही रहता है वाटर का, सेम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर, इसीलिए पानी डजंट गो इन और आउट, पानी अंदर या बाहर नहीं जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, द सेल हैज लेस वाटर देन आउटसाइड, सेल के अंदर कम पानी रहता है बाहर से, आउटसाइड मीडियम, सो वाटर एंटर्स द सेल, इसीलिए पानी सेल में एंटर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोमोसिस। एंडोमोसिस यानी सेल जो फूल जाता है। एग्जाम्पल, इफ रेजिन्स आर केप्ट, रेजिन्स यानी किशमिश, अगर उन्हें हम पानी में रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम दे स्वेल एंड बिकम टर्जिड, थोड़े से कड़क हो जाते हैं। देन तीसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जो पहला ही पिक्चर दोनों में दिखाया गया है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर क्या होता है, सेल में ज्यादा पानी होता है बाहर के मुकाबले, तो सेल से पानी जो है बाहर निकल जाता है। द सेल हैज मोर वाटर देन द आउटसाइड मीडियम एंड सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। तो एग्जाम्पल, फ्रूट पीसेस को अगर हम थिक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में यानी चाशनी में फ्रूट्स के पीसेस को रखें तो फ्रूट में जो भी वाटर कंटेंट रहता है वो निकल के चाशनी में मिल जाता है और फ्रूट जो है श्रिंक हो जाता है।
The water from the fruit pieces enter the sugar solution, so the fruit pieces shrink after a while. If plant cell or animal cell is kept in hypertonic solution, तो अगर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, इनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस. एक्सोस मीन्स एग्जिट, निकलना, एंड देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जो है अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस. इसे हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं. So after the cell wall and plasma membrane, our third component is cytoplasm. Cytoplasm क्या है? Cytoplasm is actually a fluid between plasma membrane and nucleus. Plasma membrane जो outermost covering of the nucleus होता है, of the cell होता है, and nucleus जो हमारा एकदम important part of a cell, brain हम बोल सकते हैं उसको, वो होता है. तो इन दोनों के बीच में जो एक गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. और इट इज मूविंग, ये मूव हो सकता है आराम से, बट इट इज स्टिकी सब्सटेंस, इस चिपक जाता है, स्टिकी सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म. इसीलिए देखो हम कभी भी प्लांट लीफ से वगैरह अगर काम करते हैं कुछ, तो हमारे हाथ थोड़ी देर के बाद में चिपचिपाने लगते हैं, वो साइटोप्लाज्म रहता है. मेनी सेल ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म. तो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे वो सेल ऑर्गेनेल्स सारे साइटोप्लाज्म में मानो तैर रहे हो, दे आर सस्पेंडेड, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये स्प्रेड रहते हैं. साइटोप्लाज्म इज द मीडियम फॉर सेल्यूलर केमिकल रिएक्शन. और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी काम होते हैं, वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर रहकर होते हैं. द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म अदर देन ऑर्गेनेलिस इज द साइटोसोल. ऑर्गेनेलिस के अलावा जो पार्ट है साइटोप्लाज्म का उसे हम कहते हैं साइटोसोल. यानी सेल वॉल और न्यूक्लियस के अलावा जो पार्ट है वो पूरा साइटोप्लाज्म का है. उसके अलावा भी जो ऑर्गेनेलिस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड है, और फिर उसके बाद में जो भी खुली जगह बच जाती है ऑर्गेनेलिस, न्यूक्लियस, सेल वॉल के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज साइटोसोल. और इसी साइटोसोल में होता है इट वेरियस वाइटल सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन्स एक्सेट्रा. ये देखो, ये जो चीज है ना, ये फिलिप्स के लिए, मैच द कॉलम के लिए, ट्रू और फॉल्स, ऑड वन आउट, इन सब चीजों के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर कोरिलेशन के लिए ये सब चीजें पूछे जा सकते हैं. The part of cytoplasm other than organelles is the cytosol. And what does cytosol contains? Cytosol stores vital substances like amino acids, glucose, vitamins, etc. In animal cells, cytoplasm is more granular and dense. Animal cell में cytoplasm ज़्यादा granular है, ज़्यादा grains, ज़्यादा thick हमें मिलेगा and dense. While in plant cells में थोड़ा कम thick रहता है. It is thin and mostly pushed to the periphery. प्लांट सेल में ये ज्यादा करके साइटोप्लाज्म आपको पेरिफेरी, ये देखो ये आपको दिख रहा है डॉट 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 सब, ये पूरा. तो ये जो पर्पलिश जो हमें दिख रहा है, पिंकिश पर्पलिश, ये पूरा एक सेल है. ये अनियन का जो पीलिंग है उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया है. तो ये देखो, ये इतने सारे सेल्स का बना हुआ है, ये सब सेल्स है, ये जो आपको दिख रहे हैं अलग अलग पिंकिश, लाइट पिंकिश कलर. और ये जो पार्ट है न्यूक्लियस है, और इसके अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म है. और ये ज्यादा करके साइटोप्लाज्म जो है देखो कॉर्नर कॉर्नर की तरफ फैला हुआ है. ये एनिमल प्लांट सेल में होता है ज्यादा करके. इन प्लांट सेल इट इज थिन एंड मोस्टली पुश्ड टू द पेरिफेरी. पेरिफेरी मीन्स द बॉर्डर एरियाज ड्यू टू अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल लंबे बड़े होते हैं, और इनके बड़े होने के कारण ये साइटोप्लाज्म पूरा कॉर्नर कॉर्नर पे स्प्रेड हो जाता है. अब हम बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलिस के तरफ. तो अब हमने एक्चुअली सेल का सेल वॉल कर लिया है, सेल वॉल हमने देख लिया है. सेल वॉल के अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन होता है, और उसके अलावा जो उसके अंदर जो पूरा लिक्विड फ्लूइड होता है वो है साइटोप्लाज्म. ये तीन चीज हमने कर ली. अब हम करते हैं सेल के ऑर्गेनेलिस की तरफ बढ़ते हैं. एन ऑर्गेनेली इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट. स्पेशलाइज्ड सब यूनिट क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक ऑर्गेनेल का एक स्पेशल फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए, और वो सब यूनिट है क्योंकि सेल का एक हिस्सा है, एक सब यूनिट है, हैविंग स्पेसिफिक फंक्शन विद इन द सेल. दे आर ऑर्गन्स ऑफ द सेल, और वो हमारे सेल के ऑर्गन्स है. जैसे एक ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग हार्ट, लिवर, किडनी, स्टमक, एब्डोमेन वगैरह वगैरह, इंटेस्टाइन्स एंड ऑल. उसी तरीके से ये जो ऑर्गेनेल्स है ये एक सेल के ऑर्गन है. ईच ऑर्गेनेली हैज इट्स ओन लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन. हर ऑर्गेनेल का अपना खुद का एक कवरिंग होता है.
प्रोटीन मेम्ब्रेन मीन्स वॉल, हर ऑर्गेनेली का खुद का वॉल होता है ऑर्गेनेल का। एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट ऑल अदर ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आप नॉर्मल देखें, अभी यही सेल अगर हमने देखा है तो यहाँ पे हमें ज्यादा करके क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। उसके अलावा हमें दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे सेल के ऑर्गेनेल्स देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो फिलअप के लिए ये चीज पूछ सकते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स कैन बी सीन ओनली विथ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो एक्सेप्ट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, या तो हम न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट को भी अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी अंडरलाइन दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो अब हमारा सेल का फर्स्ट ऑर्गेनेली हम देखते हैं, वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। न्यूक्लियस हमें कैसे पता चलेगा? टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास, एक पानी का ड्रॉप ले लो क्लीन ग्लास पे, ग्लास के स्लाइड पे, एंड यूजिंग एन आइसक्रीम स्पून, आइसक्रीम स्पून हमें पता है पतला सा होता है लकड़ी का, जेंटली स्क्रैप द इनर सरफेस ऑफ योर चीक। चीक यानी कि हमारे गालों का अंदर का जो सरफेस है उसे हमें स्क्रैप करना है, छीलना है, यानी मुंह के अंदर। विथ अ नीडल ट्रांसफर अ लिटिल मटेरियल फ्रॉम स्पून टू द वाटर, और चम्मच की मदद से और नीडल की मदद से, वो चम्मच से वो जो अभी हमने कलेक्ट किया है मुंह के अंदर से निकाल के, वो स्लाइड पे डालना है और उसे इवनली स्प्रेड कर देना है। पुट अ ड्रॉप ऑफ मेथिलीन ब्लू स्टेन ऑन स्मियर, और ये जो भी है उसके ऊपर एक मेथिलीन ब्लू स्टेन का एक ड्रॉप डालो। पुट अ कवर स्लिप, एक कवर स्लिप रखो उसके ऊपर, एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। डिड यू ऑब्जर्व द सेल्स विद ब्लू न्यूक्लियस? तो क्या हमें ब्लू न्यूक्लियस के साथ सेल दिखते हैं? अब देखो, द डार्क राउंड स्पॉट, अभी ये जो है ना डार्क राउंड स्पॉट seen under the microscope while observing the onion peeling stained with iodine is the nucleus of the cell। तो ये जो डार्क राउंड स्पॉट होता है ना, वो न्यूक्लियस होता है। When observed under electron microscope, we can see nucleus covered by a double layered membrane with small pores। यानी कि the nucleus is covered with double layered membrane, दो कवरिंग होती है, दो राउंड होती है उसके न्यूक्लियस के, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसके, एक तो ये हो गया और एक तो ये हो गया बड़ा वाला, और छोटे छोटे पोर्स होते हैं, न्यूक्लियस के पोर्स होते हैं। These pores allow the passage of materials in and out of the nucleus। इन पोर्स की मदद से न्यूक्लियस के अंदर और बाहर सामान आ जा सकता है, मटेरियल्स आ जा सकते हैं। न्यूक्लियस हैज वन राउंड न्यूक्लियोलस, अभी न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा राउंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस, एंड अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, और बहुत सारे ये जो आपको डार्क 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 दिख रहा है, दिस इज अ नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये थिन एकदम पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंडेंस होते हैं टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और ये कंडेंस हो जाते हैं टू फॉर्म शॉर्ट थिक क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो है क्रोमेटिन से क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होते हैं उस वक्त जब सेल डिवाइड होता है। फंक्शनल सेगमेंट्स ऑन क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड जीन्स, और ये क्रोमोसोम्स के जो फंक्शनल सेगमेंट है उन्हें हम जीन्स कहते हैं। जीन्स हम कहते हैं कि तुम्हारे जीन्स में ही ये है, मतलब तुम पैदाइशी ऐसे हो या तुम्हारे पेरेंट्स से तुमको ये क्वालिटीज मिली है, जीन्स में ये क्वालिटीज है तुम्हारे। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिवीजन। यानी न्यूक्लियस तो ब्रेन हम बोलते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी सेल न्यूक्लियस के वजह से होती है, वो कंट्रोल करता है न्यूक्लियस जो है इन सभी एक्टिविटीज को। और सेल डिवीजन भी जब होता है तब भी न्यूक्लियस जो है डिवाइड हो जाता है दोनों सेलों में। इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और प्लस ये इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटीज है या फिजिकल कैरेक्टर्स हम समझ सकते हो, तो पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ये ऑफस्प्रिंग में ये पास ऑन होता है। इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियस ओनली। वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER भी कहते हैं। द ऑर्गेनेली विच कंडक्ट्स वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल is called endoplasmic reticulum। conducts means carries, जो ऑर्गेनेली अपने अंदर बहुत सारी चीजों को कैरी करते हैं, that is called as endoplasmic reticulum। endoplasmic reticulum has a net like structure, ये हम देख सकते हैं किस तरीके से घुमावदार ऐसे नेट की तरह बना हुआ है, स्ट्रक्चर है इसका।
कंसिस्टिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड मिनिएचर ट्यूब्स, ये तो बहुत सारे ट्यूब्स है, इंटरकनेक्टेड है, ये सारे के सारे ट्यूब्स है, ये देखो ये सारे के सारे ट्यूब्स है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरे स्टार्ट टू एंड तक। एंड पतले पतले शीट्स है फिल्ड विथ फ्लूइड, ये देखो पतले पतले शीट्स है लंबे लंबे, ये देखो इस तरीके से पूरे फैले हुए हैं, स्प्रेड हुए हुए हैं, पतले पतले शीट्स है लंबे से, एंड दे आर फिल्ड विथ फ्लूइड, इनके अंदर फ्लूइड है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड एंड टू प्लाज्मा फ्रॉम इनर साइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द आउटर साइड। अब आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से ये देखो ये कनेक्टेड है। तो इनर साइड जो अंदर का साइड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, इट इज कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस, और जो बाहर का साइड है इट इज कनेक्टेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल वॉल को कनेक्टेड है। रफ ईआर हैज रिबोसोम्स ग्रेन्यूल्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आप डॉट 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 देख रहे हो, दीज आर रिबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज रिबोसोम्स ग्रेन्यूल, ये डॉट 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 सारे के सारे रिबोसोम्स हैं ऑन इट्स आउटर सरफेस, इनके आउटर सरफेस पे ये रिबोसोम्स हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या फंक्शंस हैं? इट इज द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल, पूरे सेल को सपोर्ट करता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है ये, स्ट्रेंथ देता है। इट कंडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, कंडक्शन यानी कैरी करता है अपने ट्यूब्स में पाइप्स में, ये प्रोटीन्स कैरी करता है। और जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, टॉक्सिन्स मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस और हार्मफुल सब्सटेंसेस, चाहे वो फूड हो, एयर हो, वाटर हो, किसी भी जरिए से जो हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, दे आर मेड वाटर सोल्यूबल बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो उनको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस तरीके से डिसॉल्व कर देता है, डिफ्यूज कर देता है कि वो वाटर सोल्यूबल बन जाते हैं और फिर बाद में हमारे बॉडी से उनको इजीली हम आगे फ्लश आउट कर सकते हैं सेल से। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सेल ऑर्गेनेल इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये देखिए हमें फोटो यहाँ पे दिख रहा है, इस तरीके से ये फोटो है इसका गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये डायग्राम्स भी ड्रॉ करने के लिए आते हैं एग्जाम में सारे के सारे। इट इज मेड अप ऑफ 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, यानी 5 to 8 के बीच में ऐसे फ्लैट लंबे से फैले हुए बोरे जैसे, सैक्स मतलब बोरे जैसे एक दूसरे से लगे हुए रहते हैं। दीज सैक्स आर कॉल्ड सिस्टर्ने एंड आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। इनको हम सिस्टर्ने कहते हैं और ये अलग अलग एंजाइम से भरे हुए होते हैं, दे आर फिल्ड विद डिफरेंट एंजाइम्स। The proteins coming from endoplasmic reticulum are enclosed in vesicles। और ये जो छोटे छोटे राउंड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, these all are vesicles, ये सारे वेसिकल्स हैं। तो हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, तो वहां से जो प्रोटीन निकलता है आता है, मतलब जो वो कैरी करता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पाइप जैसा है, वो जो कंडक्ट करता है, उसमें से पैसेज से सारे ट्रेवल करते हैं मटेरियल्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स बनते हैं, निकलते हैं, दे आर एनक्लोज्ड इन वेसिकल्स, वो इन वेसिकल्स में एनक्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं, विच कम टुवर्ड्स गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और ये वेसिकल्स जब इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास आते हैं वाया साइटोप्लाज्म, जैसे कि मैंने बोला साइटोप्लाज्म पूरे सेल में जो बीच में है ना, साइटोप्लाज्म भरा रहता है ना, चिपचिपा सा सब्सटेंस, थिकी सब्सटेंस, डेंस सब्सटेंस, तो इसके थ्रू ही, साइटोप्लाज्म के थ्रू ही ये फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स कैरी करके गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स तक आते हैं एंड दे फ्यूज विद द फॉर्मेशन फेज ऑफ द गोल्गी मेम्ब्रेन्स। तो ये फॉर्मेशन फेज जो है ना, ये देखो ये वाले, इनके साथ फ्यूज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं एंड एम्प्टी देयर कंटेंट्स इन द सिस्टर्ने, और वो अपने सारे कंटेंट्स जो है सिस्टर्ने में एंटी कर देते हैं। सिस्टर्ने, दीज आर सिस्टर्नेस, ये वहां पर ये होल्स के अंदर इनके। एज दे पास थ्रू द सिस्टर्ने दे आर केमिकली मॉडिफाइड, और जब वो सिस्टर्ने से जब पास होते हैं तो वो केमिकली वो खुद भी मॉडिफाई हो जाते हैं। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, फिर वो जब मॉडिफाई होते हैं तो वापस से वो वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं। दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, दीज वेसिकल्स एग्जिट फ्रॉम द मैच्योरेशन फेज, और फिर बाद में वो मैच्योरेशन फेज से एग्जिट हो जाते हैं। थस सिस्टर्ने वर्क लाइक अ पैकिंग डिपार्टमेंट दैट पैक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सब्सटेंसेस। तो ये सिस्टर्ने क्या करता है, एक तरीके से पैकिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है, जो चीज बनाकर पैक करके उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है दूसरे सब्सटेंसेस में। फंक्शंस क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स के? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सीक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। सीक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल मतलब यहाँ पर सीक्रेट होता है सम जूसेस, डिफरेंट एंजाइम्स ना, तो वो सीक्रेट होते हैं, यहाँ बनते हैं, तो वो सीक्रेटरी ऑर्गन इसीलिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स को कहा गया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू और फॉल्स में इनमें पूछ सकते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द डैश ऑर्गन ऑफ द सेल, तो वो क्या है? सीक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल।
इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैक्स मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द सेल। अभी क्या क्या मॉडिफाई करता है, क्या सॉर्ट करता है और क्या पैक करता है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या क्या बनाता है और क्या क्या पैक करता है, सॉर्ट क्या करता है, एंजाइम्स है, म्यूकस है, प्रोटीन्स है, पिगमेंट्स है, ये सब चीजें वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता भी है और ये पैक करके पार्सल भी करता है। एंड डिस्पैचेस देम टू वेरियस टारगेट्स लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम एक्सेट्रा। यानी जिनको जरूरत है वहां तक वो डिस्पैच कर देता है, यानी भेज देता है। इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स एंड सीक्रेटरी वेसिकल्स। ये वैक्यूल्स भी प्रोड्यूस करता है और सीक्रेटरी वेसिकल्स भी प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल। ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स भी बनाने में हेल्प करता है। तो सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। अगेन वैसे तो सारे ही पार्ट्स बहुत ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम बोल सकते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेलीज का, वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड। तो लाइसोसोम्स डाइजेस्ट द वेस्ट। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हम खाना खाने के बाद में जितना डाइजेस्ट होता है उतना हो जाता है, बाकी का एक्सक्रीट हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से लाइसोसोम्स क्या करता है, अभी सेल में इतने सारे एक्टिविटीज चलते रहते हैं साथ साथ में, एंजाइम्स प्रोड्यूस होना, अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाना, बहुत सारी चीजें चालू रहती है एक साथ में। तो बहुत सारा वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट भी क्रिएट होता है। तो ये सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कहाँ जाता है? ये सारा का सारा ऑर्गेनिक वेस्ट इन लाइसोसोम्स में जाता है। लाइसोसोम्स ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को अपने अंदर ले लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हम कचरा कचरे के डब्बे में डालते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सारा बायो वेस्ट जो है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो है, लाइसोसोम्स में चला जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी एक ही आउटर कवरिंग है, एक ही वॉल है, सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। एक ही पूरा सैक है बड़ा सा, इट इज पूरा का पूरा ये डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा हुआ है। ये एक एंजाइम, एक ऐसा लिक्विड है जो डाइजेस्ट करता है चीजों को। इसके फंक्शंस क्या है? वेरी फर्स्ट इज इम्यून सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हम हमारे इम्यून सिस्टम की बात करते हैं कि कोई इंसान जो है जल्दी से बीमार हो जाता है, उसे छींके आने लगती है, सर्दी खांसी बुखार हो जाता है, और कुछ इंसान जो है उन्हें कुछ जल्दी से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे कितने ही एडवर्स कंडीशंस में क्यों ना रहो, तो उसे कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि वो अपने अंदर घुसने वाले सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस को मार देता है, वो उन्हें अपने अंदर पनपने नहीं देता। तो बिल्कुल यही है, इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस। लाइसोसोम्स का क्या काम है? इट डिस्ट्रॉयज वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। सेल को जो भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, वो लाइसोसोम का काम है। डिमोलिशन स्क्वाड्स। अभी डिमोलिशन में हमने कंस्ट्रक्शन में नाम सुना है डिमोलिशन की। बिल्डिंग अगर जर्जर हो गई है तो उसे तोड़कर गिराई जाती है और उसके जगह पे नई बिल्डिंग बनाई जाती है। क्यों गिरा देते हैं उसे? क्योंकि वो खराब हो गई है। तो लाइसोसोम्स एक तरह से डिमोलिशन स्क्वाड भी है। स्क्वाड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू डिस्ट्रॉय समथिंग, और किसी को डिस्ट्रॉय होने से बचाना, मतलब ग्रुप में काम करना। इट डिस्ट्रॉयज वॉर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स। जितने भी सेल जो है वॉर्न आउट हो गए हैं, खराब हो गए हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। एंड ऑर्गेनिक डेब्रीज, ऑटोलाइसिस, और उन जितने भी ऑर्गेनिक डेब्रीज है उनको भी डिस्ट्रॉय कर देता है अपने आप। ऑटोलाइसिस यानी अपने आप, उसे पता चल जाता है कहाँ कहाँ क्या क्या खराब चीजें पड़ी है, बस वो उन्हें अपने अंदर लेके डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स। देखो ये लाइसोसोम्स के लिए ये तीनों ही चारों पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस में अगर पूछा जाए तो, या ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये पूछे जाते हैं, तो पहला इम्यून सिस्टम लाइसोसोम से जुड़ा हुआ है। डिमोलिशन स्क्वाड मतलब ये डिस्ट्रॉय करता है सेल को, सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स को, ऑर्गेनिक डेब्रीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज अ सुसाइड बैग, मतलब सेल, एक सेल के अंदर ये होता ही है लाइसोसोम। तो सेल जब वॉर्न आउट हो जाती है, यानी ओल्ड हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो ये क्या करता है, खुद बर्स्ट हो जाता है लाइसोसोम, और वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। उसका जो एंजाइम है, वो जब लाइसोसोम बर्स्ट होता है तो उसका एंजाइम पूरा बाहर निकल जाता है। तो जब एंजाइम बाहर निकलता है तो वो सारे के सारे सेल को अपने अंदर ले लेता है। तो वो अपने ही खुद के ही सेल को, जिस सेल में वो रहते हैं उसी सेल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम्स डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स, फैट्स। अभी इनका काम तो डाइजेस्ट करना है, तो इनको खाना चाहिए कंटिन्यूस। लेकिन जब हम स्टार्व करते हैं, जब हम खाना नहीं खाते हैं, उपवास करते हैं, तो उस वक्त ये लाइसोसोम्स क्या करते हैं,
दे डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी स्टोर्ड प्रोटीन्स होते हैं या फैट्स होते हैं, चर्बी होती है, उनको ये डाइजेस्ट करते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिससे हम कहते हैं एनर्जी जो हमें बोलते हैं वहीं से मिलती है, वहीं बनती है। ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो पूरे सेल को कामकाज करने की एनर्जी कहाँ से आती है? माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो हर सेल को एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया से। तो ये एग्जाम फिलिप्स के लिए पूछ सकते हैं, ईच सेल रिक्वायर्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। Under the electron microscope, a mitochondrion is seen as a double membrane structure. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। 2 लेयर्स है इसके, एक बाहर का लेयर ये हमें दिखाई दे रहा है, ये है, और एक ये अंदर का लेयर देखो बहुत ही ट्विस्टेड है, टर्न्स है, बहुत सारे टर्न्स है इसके अंदर। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। ये आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ा पोरस है, यानी कि बाहर से अंदर मटेरियल्स का आवाजावी हो सकती है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो पूरा डीपली फोल्डेड है, पूरा फोल्ड्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड दीज फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टे। इन फोल्ड्स को हम क्रिस्टे कहते हैं। तो व्हाट आर द फोल्ड्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज क्रिस्टे। ये 1 लाइन में, 1 वर्ड में किसी भी चीज में पूछ सकते हैं। द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग रिबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए। अब इसके अंदर जो है ये ब्लू कलर का जो हमें दिखाई दे रहा है, इसके अंदर जो है ये एक्चुअली क्या है, ये अंदर का जो कैविटी है, जो खाली हिस्सा है इसके अंदर का, इसमें एक जेल है जो पूरा प्रोटीन से भरपूर है, और इसमें ये जो मैट्रिक्स है जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये पूरा रिबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और डीएनए से भरा पड़ा है। देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन्स। क्योंकि इसके अंदर रिबोसोम्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स और डीएनए है, ये अपना खुद का प्रोटीन खुद बना सकता है, इसे किसी और की जरूरत नहीं है। With the help of enzymes, mitochondria oxidize carbohydrates and fats in the cell. और अपने ही एंजाइम्स के मदद से ये कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये देखो, ये वाला पार्ट जो है, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स, ऑब्जेक्टिव, हर किसी भी तरीके के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नोन एज, दैट इज नोन एज एटीपी। ये एटीपी जो है ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाती है, और एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये अगेन फिलिप्स में, मैच द कॉलम में किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। एंड प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। अगर हम एनिमल सेल से बात करें तो एनिमल सेल में आपको ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे और प्लांट सेल में कम माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं करते हैं, दे आर एट वन प्लेस ओनली, तो उनके ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नहीं होते हैं। लेकिन एनिमल्स दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड्स, एटीपी सबसे बड़ा मेन फंक्शन तो उसका यही है कि वो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी रिच कंपाउंड। ये मैच द कॉलम के लिए पूछ सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी एटीपी। और जो एनर्जी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसी एनर्जी को यूज करके और बहुत सारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स वो बनाते हैं। ओके, अब पहले डू यू नो का पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन आरबीसीज and due to this the oxygen which is carried by them is not used for themselves. आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो होते ही नहीं है, इसीलिए वो खुद ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं। वैक्यूल्स की बात करें, जैसे कि मैंने बोला प्लांट सेल, एनिमल सेल में होते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात अगर करें तो वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। जो भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट होते हैं सेल के अंदर उसे वो स्टोर करते हैं अपने अंदर। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज। उनका कोई टिपिकल शेप या साइज नहीं होता है, जैसे हमने गोल्गी कॉम्प्लेक्स का देखा है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखा है, उनके जैसा कोई शेप साइज नहीं होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। छोटा सेल है तो छोटा हो जाएगा, बड़ा सेल है तो बड़ा हो जाएगा। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल ही सेल वॉल होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से वो कवर्ड है। फंक्शंस क्या है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर वैक्यूल की वजह से मेंटेन रहता है। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट्स। अभी कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रोड्यूस जरूर होता है,
तो एक मेन चीज़ तो प्रोड्यूस होती है जिसे हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं, लेकिन वो एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते समय बहुत सारी चीज़ें और भी प्रोड्यूस हो जाती है बीच बीच में, जिसे हम बाय प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होता है वो करने के दौरान जो अलग से कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं हमारे, तो उसे भी स्टोर करता है ये वैक्यूल, और जो हमारा एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसे भी स्टोर करता है, जैसे कि ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स, वाटर, ये हमारे बाय प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। In animal cell, they store waste products and food, while in amoeba, it stores food before digestion. एनिमल सेल में वो क्या स्टोर करते हैं? सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट और फूड। और प्लांट सेल में वो अमीबा, while in amoeba, it stores food before digestion. अमीबा में फूड डाइजेशन के पहले ही स्टोर करते हैं, उसके बाद में नहीं। डाइजेशन होने के बाद में तो जरूरत ही नहीं है। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो है पूरे सेल सेप से भरे हुए रहते हैं। सेल सेप अगेन एक एंजाइम टाइप है, लिक्विड टाइप होता है, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, रिजिडिटी टू देम, जिसके कारण सेल प्लांट्स को टर्जिडिटी या रिजिडिटी मिलती है, प्लांट सेल्स को, यानी स्टिफनेस मिलती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा आ रहा है प्लास्टिड्स, दूसरा सेल ऑर्गेनेलीज। तो प्लास्टिड्स वो चीज होती है जिसके वजह से प्लांट्स को, फ्लावर्स को कलर्स मिलते हैं, जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। ग्रीन लीव्स होते हैं, रेड, ब्लू, येलो, ये सब फ्लावर्स होते हैं। सो व्हाई आर प्लांट लीव्स ग्रीन एंड फ्लावर्स रेड, येलो, ऑरेंज और ब्लू? द ऑर्गेनेली विच गिव्स सच कलर्स इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट सेल। तो जो ऑर्गेनेली उनको ये कलर देता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही रहते हैं। प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप्स। कलर ऑफ द प्लांट पार्ट, जैसे ग्रीन पार्ट है तो वो लीव्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है, पिगमेंट, जिसके कारण उन्हें ग्रीन कलर मिलता है। ऑरेंज कलर कैरोटीन, जैसे कि कैरेट, उसे ऑरेंज कलर कैसे मिलता है? बिकॉज ऑफ कैरोटीन। देन जेंथोफिल मिलता है, जेंथोफिल से मिलता है येलो कलर। एंथोसाइनिन से मिलता है पर्पल या ब्लू कलर। बेटालेन से मिलता है डार्क पिंक, जो कि बीट रूट का कलर है। ये जो चीज है आपको मैच द कॉलम में कंपलसरी आती है या फिल द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव में ये चीज आती ही आती है। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट्स, जो कि व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, जो नॉर्मली हमें एनिमल सेल्स में मिलते हैं। एंड दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, जो हमें कलर्ड, जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जो हमें प्लांट या प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप्स ऑफ क्रोमोप्लास्ट्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ऑलरेडी सेल ऑर्गेनेली का एक पार्ट, ये जो है इट कैन गेट कन्वर्टेड टू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, जो अलग अलग क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, अलग अलग कलर दे सकता है, जो कि हमने यहाँ पे ये पढ़े हैं अभी सारे कलर। एग्जाम्पल, रॉ ग्रीन टोमेटोज टर्न रेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल। अभी ग्रीन क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल रहता है। तो क्लोरोफिल अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो इट चेंजेस इनटू ग्रीन कलर, चेंजेस इनटू रेड, क्योंकि ग्रीन जो क्लोरोफिल से कलर होता है वो ब्रेकडाउन हो गया है, यानी कि अब नहीं रहा। एंड सिंथेसिस ऑफ लाइकोपीन, और लाइकोपीन अब सिंथेसाइज हो रहा है, इसीलिए रेड कलर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप दूसरा नाम लिखो रेड, तो रेड के लिए कौन सा कलर है? लाइकोपीन। विच पिगमेंट इज देयर? लाइकोपीन। तो ये भी अगेन एक फिलअप के लिए यूज हो सकता है या जो भी है। अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट, लेट्स स्टडी अबाउट क्लोरोप्लास्ट। एक्टिविटी, अगर हम काम करें एक्टिविटी के हिसाब से, टेक आउट अ थिन पील ऑफ रियो और क्रोटोन लीफ, एक लीफ का एक छोटा सा हल्का सा छिलका ऊपर से निकालो, एंड ऑब्जर्व द क्लोरोप्लास्ट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व किया गया है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्लोरोफिल, जो लीव्स को ग्रीन कलर देता है। क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो ये क्लोरोफिल जो है इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट्स इट टू केमिकल एनर्जी। ये सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट, यानी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, उसके अलावा स्ट्रोमा भी होता है। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स एंजाइम्स। इस स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं, डीएनए होता है, रिबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब के सब होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं। तो अकेला क्लोरोफिल नहीं हो, अकेला क्लोरोफिल जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। क्लोरोफिल के अलावा जो स्ट्रोमा होता है
जिसमें ये सारी चीज़ें होते हैं, एंजाइम्स, डीएनए, रिबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तब जाके लीव्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कर पाती है। इसके फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के। क्लोरोप्लास्ट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, दैट इज फूड। क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स। ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि वो कलरलेस होते हैं, दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन द स्टोरेज, सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये फूड प्रोड्यूस भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स एज वेल एज रेप्लिकेट देमसेल्व्स। इनमें सिमिलैरिटी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में? ये आप वापस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड? दे कैन प्रोड्यूस प्रोटीन्स एज वेल एज रेप्लिकेट देमसेल्व्स। वो लोग प्रोटीन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं एज वेल एज अपने आप को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, यानी अपने जैसा डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड रिबोसोम्स, क्योंकि उनके अंदर उनके खुद के रिबोसोम्स एंड डीएनए होते हैं। After studying the cell and cell organelles, you must have come to know that all the functions in plant and animal cell are taking place smoothly due to the cell organelles. Of course, ये cell organelles की वजह से ही plants और animals के body में जितने भी processes होते हैं cell में, वो सारे के सारे smoothly होते हैं। Such developed cells are called eukaryotic cells. तो इन्हीं developed cells को हम eukaryotic cells कहते हैं। और लास्ट ईयर हमने प्रोकारियोटिक सेल्स के बारे में 7th स्टैंडर्ड में हमने वो पढ़ा है। तो अब हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर से कमेंट्स कीजिए ताकि मैं अगले वीडियोस रिकॉर्ड करूं, अदरवाइज आई विल। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो आज का यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आता है वीडियो, एक्सप्लेनेशन समझ में आता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।